Okay, Bismillah ar-Rahman Rahim. So we want to study today about line graph. So line graph में आपको कुछ चीजें that the thing you need to understand is about the general trend, clear? The one that go up. This is highs and lows, like the structures we studied, clear? Hit a low off, hit a peak off, and these are very important. And then intersection, if there are some intersections, and then if you have some exceptional cases. Let's take example, and this is the vocabulary for increase, decrease. So you may study at home. Okay, the first paragraph, we will talk clear about how we can paraphrase the prompt. This is what like the original task, clear, what the IELTS provides you. And we have already studied the formula for that, clear. What was that? First of all, subject, what, verb, after verb, what we use? Subject, clear. Then where, and then when. For example, the graph below shows. Name of the graph, for example, if it's line graph or bar graph or whatever, then shows needs to be changed, shows. So instead of shows, you can use demonstrates, illustrates, depicts, presents, and after that, where it happened, radio and television audience. And throughout the day, clear? So we can just only simply paraphrase this part, the first one. This is an introduction. And if we come about the first part, clear, this is my first paragraph. Let's start taking it. Model answer for this. This is my prompt. Can you see? This is the first part where we can paraphrase it. Usually, IELTS, they don't want to provide you with the name of the graph. Like they would simply say the graph. So now name of this graph is the line graph. So simply saying the graph, you can say the line graph. They have written compares, so you should know change the word. And then they have used the number of goods transported, where, in the UK. And after that, they have mentioned what? By 4 different modes of transport. And what are they? That is road, water, rail, and pipeline. Can you see these are the 4 sources? So the categories we have in this graph, how many categories are there? 1, 2, 3, and 4. So there are 4 categories with us. वेट ये मैं आप लोग को स्लाइड्स में शो कर दूं तो वहां से आप लोग को थोड़ा क्लियर हो जाएगा और भी. अच्छा, ये स्लाइड में आपको नजर आ रहा है? Am I visible? Yes, sir. ओके, Yes, लाइन. sir. Yes, sir. नाउ ये थोड़ा बहुत ज्यादा क्लियर ग्राफ है हमारे पास, ठीक है? तो कि आप लोग थोड़ा बेहतर समझे, क्योंकि वहां पे नेम वगैरह ज्यादा दिए हुए थे. सो दैट्स व्हाई आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड बेटर. अब इस ग्राफ को देखे, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? आर 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर प्रॉम्प्ट, द फर्स्ट वन. हम इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट. ये है हमारे पास जो ओरिजिनल आइल्स का प्रॉम्प्ट है. दिस इज द प्रॉम्प्ट, द फर्स्ट पार्ट. After this, these words would be the same for all types of questions. And then it comes about your graph. तो सबसे पहले इस ग्राफ को आप देखिए, और आप सबने मेरे साथ मिलके इसके बारे में बताना है, ठीक है? कि व्हाट वी कैन डू विद दिस ग्राफ नाउ. हमें कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं इसके बारे में? नंबर 1, Introduction. अब इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन पार्ट इज फॉर व्हाट? जस्ट ओनली फॉर दिस, द फर्स्ट पार्ट. इसके लिए हमने इंट्रोडक्शन लिखना है. जो प्रॉम्प्ट है उसको हमने पैराफ्रेज करना है. After that, second part, that would be overview. हमने overview. And then the third one, main body paragraphs. Body paragraphs.
सो टोटल बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, 4 पैराग्राफ्स में हमने इसे कंप्लीट करना है। अच्छा जी, अब इसे देखे, जस्ट लुक एट द फर्स्ट पार्ट। कैन यू टेल मी नेम ऑफ द ग्राफ? Line graph. Yeah, so I can Line say graph. the provided line graph. Can I write like this? Acha, do I Yes, need sir. to Masaru se kana be with me? I'm asking you and be just answer me for that. अब आप लोगों ने मुझे जवाब Yes. देने होते। अच्छा, below no need to, don't write beneath, okay? इस चीज की जरूरत नहीं है। Don't write anything about below. After The that, stress shows. So the word they have given us what? What is that? Illustrate. shows Yeah, the illustrate, stress. depicts, whatever. Suppose depicts. The provided line graph depicts. So verb change मैंने कर दिया। अब उसके बाद क्या? in the amount and type of fast food. तो अब फास्ट फूड कंज्यूम, इन अल्फाज को मैं कैसे अमाउंट ऑफ एंड टाइप ऑफ फास्ट फूड कंज्यूम क्या लिखूं इसके लिए? The quantity of. द क्वांटिटी, ओके, डिपेक्ट्स द क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ व्हाट? फास्ट फूड। तो अब यहां पे देखिए, ये हमारे पास कैटेगरीज है। देखिए जी, सो अब आइल्स वाले आप लोग को जनरल चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। दे वांट टू प्रोवाइड यू समथिंग जनरल एंड यू नीड टू मेक इट स्पेसिफिक। अब वहां पे इन लोगों ने जनरली कहा था कि ग्राफ, हमने क्या किया इसके साथ कि हमने उसका नाम हमने स्पेसिफाइड कर दिया, कि नेम हमने मेंशन कर दिया। एंड व्हाट वाज द नेम? द लाइन ग्राफ। सेकंड पॉइंट, शोज को हमने चेंज कर दिया। एंड नाउ डिपेक्ट्स द क्वांटिटी ऑफ फास्ट फूड उन लोगों ने लिखा है ना, तो मैं स्पेसिफाई करना चाहता कि कौन सा फास्ट फूड। तो अगर उन लोगों ने वहां पे जनरल लिखा है कि 2 कंट्रीज, तो Food. आप जो नीचे नेम है उन्हीं नेम को आपने ऊपर क्या करना है? मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? द क्वांटिटी ऑफ व्हाट? पिज्जा, कामा, फिश एंड चिप्स, कामा, क्लियर, एंड हमारे पास है हैमबर्गर्स। Hamburgers. अब मैंने इसे क्या कर दिया? द क्वांटिटी ऑफ पिज्जा, फिश एंड हैमबर्गर्स। अब इन लोगों ने क्या कंज्यूम लिखा है, तो इसे क्या हम कर सकते हैं? कैन आई से ईटन? कंज्यूम की जगह मैं ईटन लिख सकता हूं ना? Yes, Yes, sir. sir. ईटन, Yes. ईटन बाय whom? बाय ऑस्ट्रेलियन टीन एजर्स। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने कहा था कि इसे आप रीअरेंज कर दे। ईटन बाय, तो रीअरेंज कैसे हो सकता है? बाय ऑस्ट्रेलियन टीन एजर्स की जगह मैं क्या लिखूं? By Teenagers. या बाय, क्लियर, बाय Teenagers of Australia. टीन एजर्स ऑफ Australia. ऑस्ट्रेलिया, लाइक दिस। चीज वही है, हमने थोड़ा चेंज कर दिया। अब यहां पे फ्रॉम लिखे, तो फ्रॉम को मैं किस चीज में कन्वर्ट कर दूं? बिटवीन। फ्रॉम को किस चीज में चेंज कर लेंगे? बिटवीन। बिटवीन 1975 और बिटवीन, यहां पे 2 है, 2 को आप लोगों ने चेंज करना है एंड में। The provided line graph depicts the quantity of pizza, fish, and chips, hamburgers eaten by teenagers of Australia between this। अच्छा, आप दोनों को कंपेयर करें भाई। चिराकम, अगर आप लोग अकेले नहीं बैठे तो प्लीज कीप योर माइक ऑफ। अगर अकेले है तो यू कैन कीप इट ऑन। अच्छा, अब इसमें देखे कि आप प्रॉम्प्ट को देखे एंड पैराफ्रेज पोर्शन को देखे, दोनों को, क्या आप लोगों को क्या मतलब, व्हाट मैसेज डू यू गेट आउट ऑफ इट, कि क्या हमने चेंज कर दिया इसमें? we have paraphrased it. किस चीज को आपको क्या, किस चीज की समझ आ रही है कि क्या मतलब ऐसा हमने इसके साथ क्या क्या किया? Um, So we it's changed the General amount. This is We One by one. listen and only. अब थोड़ा टाइप करिए प्लीज, कमेंट में सब अपना अपना व्यू दे दे कि मतलब व्हाट डू थिंक, लाइक व्हाट इज समथिंग वी डिड विद इट। क्या आप लोग मतलब पैराफ्रेज तो कोई कोई भी कर सकते हैं, एनीबॉडी कैन पैराफ्रेज इट।
So if you have paraphrased it, so what is something like different that you felt that yes, this is something like this is why I believe that it's a good paraphrasing. क्यों पैराफ्रेज तो कोई भी कर सकता है, इसमें क्या ऐसा चीज था कि आप लोगों ने दे के आपको लग रहा है कि यस अच्छे बयान में चीज इसको हम टाइप जानर तो करें, टाइप स्पेसिफिक करें, कर हर लिए। एक बंदा अपना अपना जो पॉइंट आप लोगों ने नोट किया उसके बारे में टाइप करे थोड़ा प्लीज। आई एम गोना चेक इट आउट, आई एम गोना रीड इट। आप लिखते ठीक है, यूज synonyms, या एग्जैक्टली सितारा, वी हैव स्पेसिफाइड इट, गुड, rearrange, good, yeah, Mamoor Ahmad, very good, excellent. We presented in different words, good. Structure हमने change कर दिया, and then specified किया, लेकिन हमने original meaning चेंज नहीं की। same. Important चीज ये कि हमने original meaning को change नहीं किया. We use different synonyms, we use different structure, we made it specified, but the most important thing is we kept same meaning. Meaning को हमने same रखा, meaning को हमने change नहीं किया, we kept it same. And that's very important. Sometimes students paraphrase तो कर लेते हैं लेकिन original meaning change कर देते हैं. So changing original meaning means what? कि फिर ये गलत है। तो मेक श्योर कि आप लोग को इस चीज का पता हो। अब इसके अलावा सेकंड पार्ट, पैराग्राफ नंबर 2 आएगा, इसके बाद हमने किस चीज को लिखना है? अच्छा, इसमें और कुछ मैंने अपनी तरफ से लिखना है? कैन आई गिव माई ओन ओपिनियन? कैन आई राइट आई थिंक? No. नो सर। टास्क No. में एक्सेलेंट, नो पर्सनल ओपिनियन, नो पर्सनल ओपिनियन, यू कांट से आई नो थिंक। सर। एक्सेलेंट, हम ये नहीं लिख सकते, ठीक है? इसमें पर्सनल ओपिनियन कभी भी, एंड नो, नेक्स्ट पार्ट, नो पर्सनल प्रोनाउंस, ना पर्सनल प्रोनाउन आपने इस्तेमाल करने और ना पर्सनल ओपिनियन यहां पे मेंशन करने, अदरवाइज आपके ही शी इट इसमें नहीं लिख सकते, ठीक है ना? नेवर यूज देम। अब इसके बाद हमने जो लिखना है दैट इज ओवरव्यू पैराग्राफ। कौन सा पैराग्राफ? ओवरव्यू। अब ओवरव्यू के लिए हमने क्या लिखना है? वी स्टार्ट विथ ओवरऑल, ओवर Overall. कामा, हमने ओवरऑल से स्टार्ट लेना है एंड देन वी कैन पुट कामा। अच्छा, इसमें जितनी भी कैटेगरीज है, फॉर एग्जांपल हाउ मेनी कैटेगरीज डू यू हैव? 4. 3. थ्री। 3. there are 3 के मेंशन करना, मेंशन all 3 categories, यस सर। general, trend, mention all 3 categories, but no values, no dates, ये चीजें आप लोगों ने मेंशन नहीं करने। अब इसमें मुझे बताए कि ओवरव्यू तो मैं लिखना चाहता हूं, स्टार्ट में लूंगा ओवरऑल, ओवरऑल के साथ मैं लिख सकता हूं इट कैन बी क्लियरली सीन दैट, ये आपको मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा अल्फाज दिए कि आप खुश हो जाए, ठीक है, कि आपके वर्ड्स पूरे आए। इट कैन बी क्लियरली सीन दैट। अब इसमें देखें, इन कैटेगरीज में हमारे पास, इफ यू फोकस दीज कैटेगरीज, if you focus these categories, these two, they show upward movement. This one, it shows downward movement. तो ये तो बहुत आसान हुआ। तो अपोजिट चीज इसमें आ रहे हैं ना, we have got 2 opposite characteristics here, one with upward and one with downward. तो दो जुमले हमारे लिए, 2 sentences are more than enough. To combine these two, we can use 2 conjunctions, either while or whereas. हम अब अगर इसे लिखना चाहते, so we can write with, we may start with overall, O capital, overall,
come. It can be clearly seen that. अब आपको क्या नजर आ रहा है भाई? क्या हुआ है इसमें? वो जो स्ट्रक्चर आप लोग को अभी मैंने दे दिया ना, उसमें एक स्ट्रक्चर मुझे दे दे। मतलब मैं व्हाट स्ट्रक्चर लिखना चाहता हूं, व्हाट मैं कहां से शुरू कर दूं? इंक्रीज। इंक्रीज तो ठीक है, लेकिन किस चीज को, क्या इंक्रीज हुआ है? अब इसमें कैटेगरीज है ना, तस दो कैटेगरी व्हाट पर देखिए कम दे। Consumption. Consumption of pizza Utilization and of Okay. pizza. hamburgers. That the Consum consumption of of what? Pizza pizza and and hamburgers hamburgers. Hamburgers. Udama increase. sir what show kana? What rag kana? Yes, sir. With the what this is now what? After what we use how. So after what we use and how? Verb plus adverb. Yes, The sir. consumption of pizza and hamburgers increased. 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 How increased? Can you see? So they have increased dramatically, right? काफी ज्यादा increase हुआ है. Yes, sir. Clear? Yes, sir. Dramatically. अब इसमें through out the period. Idiot. अब इसमें देखिए, इसमें मैंने ये नहीं लिखा कि कब, लेकिन मैंने जनरली लिखा कि थ्रू आउट द पीरियड। अगर मैं ये लिखता कि 1975 से 2000, तो ये फिर डेट्स मेंशन होते, ये गलत होता। फिर मैंने सिंपली क्या लिखा कि Throughout the period. या थ्रू आउट द पीरियड। अब इसमें मुझे देखिए, मुझे बताए, हैव आई मेंशन एनी वैल्यू? No, No. sir. No. No, No, sir. sir. एग्जैक्टली ये। अब वही स्ट्रक्चर है कि नहीं? इट्स द सेम स्ट्रक्चर, राइट? दिस इज द Yes, सेम sir. स्ट्रक्चर। Yes, व्हाट sir. स्ट्रक्चर? अब दूसरा, मैंने व्हाट स्ट्रक्चर के अलावा मैंने अब यहां पे कंजंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूं। यू कैन आइदर यूज While. वाइल और यू कैन यूज While. While. वेयर इज, Yes, sir. लेकिन वाइल से पहले कामा जरूरी Whereas. है। कामा वाइल के बाद नहीं लगता है, उससे पहले लगता है। आई कैन आइदर Yes, यूज sir. वाइल और वेयर इज। Whereas. लिख दिया मैंने वेयर इज या वाइल। Yes, वाइल। sir. अब देयर वाज, while there was a significant decline Decrease. decline Decline. in the clear in the utilization of किस चीज में? fish and chips. Chips. खत्म. This is your overview. Yes, sir. Now this is my overview paragraph. Overview paragraph is a general trend. इसमें हम ये नहीं लिखते कि कब, कितना, कैसे, नहीं, हमने सिर्फ लिखे कि बस ओवरव्यू, ये इतना ऊपर गए, दूसरा नीचे आया, और वही दो स्ट्रक्चर हमने मिला दिए कि नहीं? Yes, sir. या Yes, sir. Yes. या मिस सितारा, जो आप पूछ रही थी, व्हेन यू आस्क्ड मी कि सर कैसे हमने लिखना होता है, तो अभी आपने देख लिया कि कैसे हमने लिखना होता है। Yes, sir. So this is how like we should work out. This is your overview paragraph. Any questions so far? No question? No. Okay. After this, we want to talk about the next part, and that is two man body paragraphs. We may write down two man body paragraphs. अब इसमें आप देखें, हमारे पास कैटेगरीज कितने हैं? 3 है कि नहीं? तो दो कैटेगरी जो सेम Yeah. सेम ट्रेंड में हो। सेम ट्रेंड में कौन कौन से है? ब्लू एंड ग्रीन। Yeah. और ये जो है ऑपोजिट ट्रेंड में है। तो सेम को मैं एक पैराग्राफ में लिख दूंगा, और जो हमारे ऑपोजिट ट्रेंड है वो अलग पैराग्राफ में होगा। फिर डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब Yes. इसमें जरूरी नहीं कि यू नीड टू राइट डाउन वर्ड बाय वर्ड। इसमें ट्रेंड के लिहाज से हमें लिखना होता है। ट्रेंड के लिहाज से कैसे? फॉर एग्जाम्पल, यहां से लेकर यहां तक, मतलब ट्रेंड है कि नहीं? इसके बाद चेंज आया ना, ये Yes, डिक्रीज sir. हुआ है, Yes. तो इसके बाद इंक्रीज, ये मेंशन करना जरूरी है। लेकिन यहां से लेकर यहां तक कोई चेंज नहीं आया, सो वी कैन कंप्लीट इट क्लियर इन 3 स्टेप्स।
नंबर 1, नंबर 2 एंड देन नंबर 3। अब इसमें देखें, यहां से लेकर यहां तक मतलब इसमें कोई ट्रेंड है, चेंज आया नहीं, एक ही जुमले में काफी है। लेकिन यहां पे क्या इंटरसेक्शन है कि नहीं हमारे पास? Yes, और फिर sir. यहां से यहां तक आप देख रहे हैं, यहां पे क्या स्टेबिलिटी है। फिर ये यहां से लेकर ये यहां तक। अब इसमें आप देखें कौन सा वाला इंक्रीज है, कौन सा वाला डिक्रीज है। फिश एंड चिप्स डिक्लाइन, पिज्जा एंड हैमबर्गर्स इंक्रीज्ड। Increased. अब हमारे पास इंटरसेक्शन दो जगहों पे हुए। इसमें सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ है वो ग्रीन है, हैमबर्गर्स। हाईएस्ट हाईएस्ट इंक्रीज इसमें आया है। इसमें देखिए ये लो पॉइंट इसने हिट किया हुआ है कि नहीं? लो पॉइंट है, 2000 में इसने लो पॉइंट हिट किया हुआ है। एक हमारे पास इसमें स्टेबिलिटी भी आया। रैंकिंग के लिहाज से 1975 में फिश एंड चिप्स हाईएस्ट था, लेकिन 2000 में यह लोवेस्ट है। सबसे ज्यादा चेंज मतलब जिसमें इंक्रीज आया है वो है हमारे पास हैमबर्गर्स, सबसे बड़ा चेंज। अब इस पे हम लिख सकते हैं इजीली। फर्स्ट पैराग्राफ नंबर 1, वी वांट टू टेक अ स्टार्ट। In 1975, the most popular fast food with Australian teenager was fish and chips. अब यहां पे देखें कि सबसे ज्यादा पॉपुलर 1975 में कौन सा था? Fish and chips. फिश Fish एंड and चिप्स। chips. Started at exactly 100 times per year. क्या 100 times per year पर शुरू हुआ है कि नहीं? Exactly. क्लियर? Yes. सो वी कैन से started at। अच्छा, ये कुछ वर्ड है, started at, began at, ended at, finished at। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। खत्म इस पे हुआ तो प्रपोजिशन at will be used there। अब यहां पे देखिए, इट वाज द मोस्ट पॉपुलर, सुपरलेटिव हमने इस्तेमाल किया कि 1975 में ये सबसे पॉपुलर फूड था और स्टार्ट हुआ था ये बीइंग ईटन 100 टाइम्स अ ईयर। दिस वाज फार हायर देन फिश एंड चिप्स हैमबर्गर्स। उस टाइम में अगर आप देखिए यहां पे, सो विच वर कंज्यूम अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स अ ईयर। ये तो हाईएस्ट था, लेकिन ये दो नीचे जो हमारे पास है, पिज्जा एंड हैमबर्गर्स इन 1975, वो सबसे कम है कि नहीं? Yes. वो सबसे कम है, Yes. ऑलमोस्ट लाइक अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स था उस टाइम में ये। लेकिन फिश एंड द फर्स्ट वन, फिश एंड चिप्स, इट वाज द हाईएस्ट वन, ये सबसे हाईएस्ट है। फिर हाउएवर, हमने हाउएवर क्यों लिखा यहां पे? हाउएवर इसलिए लिख रहे हैं कि यहां पर अगर आप देखें ये डिक्रीज आया था, हाँ, लेकिन ये फिर इसमें थोड़ा इंक्रीज Yes. आया, ठीक है। और फिर इसके बाद ये काफी ज्यादा डिक्लाइन इसमें आ रहा है यहां पे। सो वी हैव से however apart from a brief rise, तो ये वापस मतलब ये नीचे आया, ये दोबारा से मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो इसीलिए हमने however लिख दिया। however apart from, इसमें देखे, लेट मी, however apart from a brief increase, brief means short increase, ये इंक्रीज आया कि नहीं? फ्रॉम 1980 to 1985, the graph showed, apart from a brief rise from 1980 to 1985, graph shows what? Graph declined। अब डिक्लाइन तो हुआ है, लेकिन कैसे डिक्लाइंड हुआ है? Dramatic. Dramatically, clear, significantly declined throughout the period and hit, clear, decline between 1985 to 2000 and hit a low point, low point of, low point of, low point of जस्ट अंडर 40। ये 40 है हमारे पास, लेकिन ये 40 से नीचे है, तो मैं क्या लिखूंगा? एट जस्ट अंडर 40। तो हमारे पास एक ग्राफ जो है, वी कैन कंप्लीटली क्लियर दैट। इसमें देखिए, दिस वॉज फार हाइयर देन दिस, हाउएवर ब्रीफ पार्ट फ्रॉम राइज
Again, from 1982 to this, the consumption of fish and chips gradually declined. What structure है? Over 25 years time scale to finish it just under 40. ये ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप कैसे लिख सकते हैं? And hit a low point of just under 40 times a year. तो पहला पैराग्राफ आपका यहां पे कंप्लीट हो सकता है. द सेकेंड वन यू कैन टॉक अबाउट इन शार्प कंट्रास्ट टू दिस. कंट्रास्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो दूसरा पैराग्राफ है वो ऑपोजिट है. द सेकेंड पैराग्राफ इज द ऑपोजिट वन. So that's why we can say, in sharp contrast to this, teenagers ate the other two fast food at much higher levels. अब देखिए much higher level में खाया गया कि नहीं? मतलब शुरू में 1975 में तो वो ज्यादा था, उसके बाद after that what happened? Risk too has increased. अब हम क्या? Pizza consumption increased gradually until it overtook the consumption of fish and chips in 1990. पिज्जा कंजम्पशन को आप देखें, ये पिज्जा कंजम्पशन है इंक्रीज ग्रेजुअली. एम आई राइट? ये इंक्रीज फ्रॉम 1975. यस सर. ठीक है. एंड ओवरटुक दैट ऑफ फिश एंड चिप्स. फिश एंड चिप्स किसने एंटर क्या किया यहां पे? ओवरटुक किया किस ईयर में? इन 1990. एम आई राइट? वी कैन से पिज्जा कंजम्पशन increased gradually and clear from 1970 and overtook that of fish and chips. कब? in 1990. 1990 में इसने क्या किया? ओवरटुक कर दिया उसे. आप लोगों से मैंने कहा जब आप इंटरसेक्शन हो रहे तो आप इंटरसेक्शन को मेंशन कर क्या करें? यस सर. फिश एंड चिप्स. अब it then leveled off from 1990 to 2000. अगर आप यहां पे देखें फिर क्या हुआ? लेवल्ड ऑफ हुआ है हमारे पास. देन लेवल्ड ऑफ फ्रॉम 1995 टू 2000 एट. अगर आखिर में आपने वैल्यू लिखना है तो वैल्यू लिखे एट अबाउट फॉर एग्जांपल द वैल्यू इज एट अबाउट 85 टाइम्स अ ईयर. अब इसी के साथ हमने ये दूसरा लिखना है. द हाइएस्ट और द बिगेस्ट राइज was seen where? Thereof in the consumption of hamburgers. क्योंकि हैमबर्गर्स में सबसे ज्यादा मतलब हाईएस्ट राइज आ चुका है. So the biggest rise was seen in hamburgers at the occasion they were eaten increased sharply throughout 1970s and 1980s. अगर 1970s 1980 में देखें तो सबसे ज्यादा ये इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 70s एंड 80s में देखें यहां पे ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है. एम आई राइट? Yes. और फिर इसने इंटरसेक्ट किया, फिश एंड चिप्स को इंटरसेक्ट किया, क्रॉस किया, एक्सीड किया इन 1985 एंड देन क्लियर इसने फिनिश कर दिया एट द सेम लेवल वेयर फिश एंड चिप्स स्टार्टेड 100 टाइम्स अ ईयर. अब इसमें देखिए, the biggest rise was seen in hamburgers as the occasion they were eaten increased sharply throughout the 70s and 80s, exceeding that of fish and chips in 1985. It finished at the same level that fish and chips began, with consumption 800 times a year. तो हमारे पास सबसे पहले पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, मेन बॉडी पैराग्राफ 1, मेन बॉडी पैराग्राफ 2. अब आप लोगों ने क्या करना है? आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द होमवर्क, और ये आप लोगों ने मुझे ईमेल करना है. ये है आप लोग का होमवर्क. इससे पिक्चर ले ले प्लीज. इससे पिक्चर ले ले. आप सबने इस पे लिखना है. यू नीड टू राइट डाउन कंप्लीट. टाइप करे, मुझे वर्ड में भेज दे, मुझे ईमेल कर दे. आई एम गोइंग टू शेयर यू द ईमेल एड्रेस एज वेल. सिंपल बात है. इट्स क्वाइट सिंपल. साफी आइल स्टूडियो. लेट मी टाइप हियर. साफी विजुअल शोना है सर मुंटा. वेट दे पता शूशी बिची माता उससे जीमेल वो ले गलो. जीमेल خو مسرجي سند کو خو چې کوم homework مراد هغه مونږ ته شو نه شو. یو منټ لک سا خواله کنه سړی اوس لس کار خو په یو ټایم نه کیږي کنه. اوس وګوره چوف اوکې پیچو ده. اوس ته شو Yes sir.
دې نه والا او هغه بل چې تاسو که د هغې نه سکرین شاټس والئ چې هغې تاسو ته بیا دغه درته راشي میلاو شي درته ماډل انسرز په بوک کې هم شته او دې کې هم تاسو کوئ دا ته میلاو شو دې نه پکچر واغوستو که نه Yes, sir. اوکې هغه شاته چې کوم و هغې نه تاسو ماډل انسر دپاره د دې فارمیټ کې تاسو دا لیکلی شئ نو هغې دپاره هم تاسو دا کوم چې ماډل انسرز و هغې دپاره تاسو پکچرز ترې والی د دې نه پکچر والی اول بیا به زه ماډل انسر هم درته دغه کوم اول دې سوال نه چې کوم ګراف دی دې نه پکچر والی وام وغوښته سر. اوکې و د دې نه م والی ډن Yes, sir, done. اوکې دې باندې به کار وکړئ تاسو ماته راولئ هر یو کس په ماته دا ایمیل کې چې زه دا چک کړم چې تاسو څومره پرې پوه شوي یئ کوم ځای کې ستاسو ایشو چې زه ته کلیر کړم بیا او سبا به انشاءالله موږ بار چارټ ویو صحیح ده You kindly the previous two classes, sir, kindly the due to recording the share, please. ټول شیر کوم قربانه نه ما یو ویډیو شیر کړی وم دا ټول یو یو زه ته شیر کوم ښه Sir, bro, can I run, sir? نه په یوټیوب باندې موږ اپلوډ کړي که نه هغه ګورئ که نه یوټیوب باندې دي صافي آیل سټوډیو ورکه یوټیوب کې صافي آیل سټوډیو صافي آیل سټوډیو یوټیوب باندې ورکې تاسو بلته کې ډایرکټ ما نن هم یو ویډیو روزانه زه یو ویډیو دوه به درته اپلوډ کوم اوس ښه Okay. Okay then. Any other questions, please? No, sir. اته ظهیر دغه چې دی په دغه پی ډي اف کې تا ته موږ نشو درکولی که نه قربان څو ځل درته ویم میم سره کنټیکټ وکړئ او به تاسو ته په دغه کې هارډ کې به ته ډسپیچ کړي So we'll see you inshallah tomorrow. Huh? Take care of yourself. Allah Hafiz, everyone. Thank you. Assalamu alaikum. Allah Hafiz. Thank you, sir.